Hello, my dear Bachapati. Once again, welcome back to my class. So, what we have discussed in our previous class, we have discussed the Pulley tricks, free body diagram, and law of conservation of momentum, and we solve some HOTS questions and other numericals based on your Pulley tricks and linear momentum. And we have already completed one practical application, that is recoil of a gun, that is the most important, where we have to find out the recoil speed of a gun. Okay, so this is our lecture number 11 of NLM chapter 5 of XI physics, and today we are going to discuss the first topic, the first lecture of topic friction. फ्रिक्शन, सब लोग को मालूम है ये वर्ड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन में ही चैप्टर में आता है, ठीक है। सो वी हैव कंसीडर दैट इज फ्रिक्शन 1, ओके, लेक्चर 1 ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. So these are the key points. Today you are going to discuss the introduction part and the types of friction, that is static and kinetic friction. And today's videos is all about the kinetic friction. First we have discussed what is introduction part, then kinetic friction, then static friction. Okay, so now we study another type of force which is very much prevalent around us, and without it life is not possible, and that is force of friction. We have already completed four common forces, apparent void, normal reaction, tension. टेंशन लेने का नहीं, क्या टेंशन देने का नहीं, टेंशन को सीखने का, यस. देन नंबर 4, दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स. दैट इज नंबर 5 कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, दैट इज फ्रिक्शन. सो दिस इज नंबर 5 ऑफ कॉमन फोर्सेस, दैट इज फ्रिक्शन, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1. सो व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड where it is applicable? First of all we shall discuss that is what is friction. So ये जो लेक्चर्स है जस्ट रॉब कॉपी निकाल, रॉब में इसे नोट डाउन करो फ्रॉम द वीडियो, मैं उसका कंसेंस नोट्स प्रोवाइड करूंगा. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन मूव्स और हैज ए इंटेंशन टू मूव विद रेस्पेक्ट टू अदर, देन ए फोर्स डेवलप्स बिटवीन द टू टू ओपोज इट. This is force of friction. Means what? What is the proper meaning of this statement? When two objects are in contact, when one moves and one moves has a intention to move with respect to other, so then a force develops between the two opposite. This is force of friction. Suppose this is a body, this is object 1 suppose, and this is another body, object 2. All right, so if body A or if object A is trying to move with respect to other, this is one object and this is another object, and object 1 is trying to move with respect to other, so both are moving together is not the case. Both are moving together is not the case. Object 1 is trying to move with respect to other. That means suppose this is a body or this is another body. Okay, suppose this is body A and this is body 2, and the body 1, that means the body 1 is like this. Body 1 is like this. Okay, and other is moving this way. First one is moving this way and or this way or this way. So what is the meaning? Even if it is not moving but it has a intention,
but it has a intention to move, just going to move, just going to move. Even then a force develops between the two. Suppose this is a point, this is a point, or this is a contacting point. This is a body and this is a body, another body, or this is a contacting point. This is a contacting point. This is a contacting point. Suppose this is a body, body A, and this is body 2. So here this is a contacting point. This is a contacting point. Means what? This way and this way, trying to move with respect to other. That means one is like this or like this way or this way. So suppose this is a contacting point. This is a contacting point. What? Contacting point. Contacting point means क्या है? दो ऑब्जेक्ट जहां पे कॉन्टैक्ट है, जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्टिंग पॉइंट. दिस इज ए कॉन्टैक्टिंग पॉइंट. तो मान लो दिस इज ए कॉन्टैक्टिंग पॉइंट. दिस इज ए कॉन्टैक्टिंग पॉइंट. Okay, so even then a force develops between them, and the force, or there is a force which develops or which tries to oppose the motion or intention of motion. Like I give you an example. So this is example. ये डस्टर को लेकर एग्जाम्पल में दे रहा हूं. ठीक है, सपोज दिस इज ए बॉडी और दिस इज अनदर बॉडी. दिस इज ए बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी. तो ये डस्टर जो है, एक डस्टर है, उसके ऊपर एक डस्टर रखा है. आई हैव वन बॉडी एंड आई हैव अनदर बॉडी. ठीक है. सो देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ मोशन एट प्रेजेंट. व्हाट? एट प्रेजेंट. देयर इज नो इंटेंशन ऑफ मोशन एट प्रेजेंट. So now I apply a force 1 Newton and I pressing it. Now I apply 1 Newton and I pressing it. It's not moving. It's not moving. I say it has an intention to move, but it is not moving because my force is not sufficient. I make it 2 Newton. It does not move. 3 Newton, it moves. 4 Newton, it moves. 1 Newton does not move. 2 Newton does not move. 3 Newton, it moves. 4 Newton, it moves faster. So there is a force acting between these two. Acting between these two. So where is this force is acting? Here. These two surfaces are in contact and the force acts here, and that is the force of friction. Okay, ठीक है. So this is the definition when two objects are in contact and one moves or has intention to move with respect to other. तो बेसिकली ये हमारा जो फ्रिक्शन में, इतना हिस्ट्री हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, यानी कि तुम लोग को एनसीईआरटी में मिल जाएगा भी उसका टेक्स्ट. ठीक है, बस उसको हम लोग कॉन्सेप्ट को जाएंगे. कंसेप्ट क्या होता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जो बेसिकली है तुम लोग को आराम से इजीली समझाएंगे और इजीली तुम लोग समझेंगे. तो कांटेक्ट फोर्स है और कुछ नहीं है. क्या है? कांटेक्ट फोर्स. व्हाट? ना फ्रिक्शन जो है दैट इज कांटेक्ट फोर्स. मेनली कांटेक्ट फोर्स है. मेनली क्या है? कांटेक्ट फोर्स है. तो कांटेक्ट फोर्स मींस क्या है? जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, एक ऑब्जेक्ट है, उसका ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक कांटेक्टिंग पॉइंट है, दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है. ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स दोनों कांटेक्ट में है, तो जो फोर्स लाया उसे कांटेक्ट फोर्स. तो उसी हिसाब से एक फ्रिक्शन है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते तब फ्रिक्शन फोर्स लगती है. ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर्स रहेगा, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन का जो क्वेश्चंस है, तुम लोग लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ये सब में क्वेश्चंस आ जाता है. यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 मार्क कंपलसरी है. फ्रिक्शन से भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 11 में 2-3 मार्क भी
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है डाल देते हैं लॉज ऑफ मोशन यानी कि वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली कांटेक्ट फोर्स होता है दो बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन। ठीक है, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन, एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इसे जस्ट रफली लिखो, मैं उसका कॉन्साइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अपडेट कर देना। ठीक है, तो देखो यहां पे जो हमारा एनसीईआरटी में है ये रिलेटिव मोशन जो है रिलेटिव मोशन को ओपोज करती है, दे ओपोज टू रिलेटिव मोशन। तुम्हारा एनसीईआरटी में जो है रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ओपोज करता है। मेनली क्या करता है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। क्या है रिलेटिव मोशन को कैसे ओपोज करता है? रिलेटिव मोशन को ओपोज करते हैं या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ओपोज करता है या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या तो रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। देखो एनसीईआरटी बुक निकालो, थोड़ा देखो उसका टेस्ट। ठीक है, या तो रिलेटिव मोशन सच में हो रहा है उसको वो रोकना चाहिएगी, जो रिलेटिव मोशन सच में हो रहा है उसको रोकना चाहिएगी, या तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, होने वाला है यानी कि जो टेंडेंसी होगा वो होने वाला है, या तो टेंडेंसी जो है रिलेटिव मोशन का सच में हो रहा होगा उसको वो रोकना चाहिएगी, यानी कि या तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी या होने वाला है वो उसको रोकने चाहिएगी। दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, अलोंग द कॉन्टैक्ट कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। तो या तो रिलेटिव मोशन जो है उसका टेंडेंसी जो है या में सच में हो रहा होगा तो उसको ओपोज करने के लिए, उसको रोकना के लिए चाहेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी यानी होने वाला है उसको रोकना चाहेगा। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट में इंग्लिश वर्ड में दिया है। ठीक है, तो जहां कांटेक्ट है उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक है, जहां कांटेक्ट है उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, सपोज मान लो यहां पे एक बॉडी ए है, ठीक है, बॉडी बी है। देखो सपोज सिंपल एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में तुम लोग को मिल जाएगा। यानी कि देखो ये जो बॉडी है, बॉडी ए है, देखो एनसीईआरटी में भी टेक्स्ट दिया है, तो ये जो बी है विथ रेस्पेक्ट टू अदर दिया था डेफिनेशन में, ये जो बी है, जो बी के रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहे हैं ना, आगे तरफ से, सपोज ये आगे तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है आगे तरफ खींचा, तुम लोग सपोज ये ऑब्जेक्ट को आगे तरफ खींचा, तो बी के रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं। तो बी जो है, बी ऑब्जेक्ट जो है ए पे लगाया फ्रिक्शन, क्या लगाया? ए पर लगाया फ्रिक्शन, क्या लगाया? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो ये आगे इसे खींच रहे हैं, ठीक है, आगे तरफ जा रहे हैं, तो बी के हिसाब से ए आगे तरफ जा रहे हैं, तो बी ए के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। कौन सा डायरेक्शन में? पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल एफ में डिनोट किया। तो ये जो ए आगे तरफ से जा रहे हैं, तो बी ए पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, वो कौन सा डायरेक्शन में ना? पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगाएगा ना? अलोंग द कॉन्टैक्ट, मींस अलोंग द टेंजेंशियल।
along the contact, ये कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, दैट इज टेंजेंशियली, क्योंकि उसका डायरेक्शन में अभी क्या बोला, टेंजेंशियली। तो किसको ओपोज कर रहे हैं ना, रिलेटिव मोशन को ओपोज कर रहे हैं। सपोज और एक बात है, तो ये तो आगे तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बी ए के ऊपर एक फोर्स लगा, दैट इज अलोंग द कॉन्टैक्ट, दैट फ्रिक्शनल फोर्स लगा। किसको ओपोज कर रहे हैं ना, रिलेटिव मोशन को ओपोज किया। सपोज ऑब्जेक्ट ए आगे जा रहा है, ठीक है, और उसने बी को देखा, ए आगे जा रहे हैं, ऐसे आगे जा रहे हैं, बी को देखा उसने, तो वो केस में क्या होगा, तो उसे देखना बी को, बी किधर जाता होता और बी किधर जाता हुआ, ए आगे जा रहे हैं, बी किधर जाता हुआ ना पीछे, बी को देखा बीच में, तो ए ने बी पे ये डायरेक्शन में लगेगा उसका फ्रिक्शन। तो देखो ए आगे जा रहे हैं, बी पीछे जा रहे हैं, ठीक है, ए आगे जा, बी को देखा, तो ए बी पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द कॉन्टैक्ट, यस और नो। तो उसने बी किधर जाता हुआ ना पीछे, तो ए ने बी पे फ्रिक्शन की फोर्स लगाई, कहां पे ना आगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एफ बी ए, और ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी। न्यूटन्स थर्ड लॉ आ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला था, टू एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट, इक्विवेलेंट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो बोला क्या, दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन पेयर, तो यहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज हुआ ना, ये तो ये डायरेक्शन में ए बी पे ऊपर फ्रिक्शन लगा, बी ए पे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ये सब नो एक्शन रिएक्शन आ गया वहां पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला था, जो फ्रिक्शन की फोर्स में पेयर होती, दैट इज एग्जिस्ट इन पेयर, यहां पे भी पेयर होती, दैट इज एग्जिस्ट इन पेयर। हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पूरा क्लियरली हम लोग पढ़े, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा इन पेयर में, दैट इज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। मैं एक्चुअली एनसीईआरटी बुक पार्क्स में रखा हूं, तो उसको देख के थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, तो तुम लोग को आसान से टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, देखो जो एग्जिस्ट इन पेयर बोला है, पेयर में एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है। तो ए जो है बी को लगा, ए आगे जा रहा है, उसको रोको, तो उसको किधर फोर्स लगाया ना पीछे की तरफ। फिर ए ने बी जो ए है, ए ने बी को देखा, बी किधर जा रहा था ना पीछे, सो ए ने बी पे किधर फोर्स लगाया ना फ्रिक्शन, कहां पे, फ्रिक्शन की आगे लगाया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ दिया है, ठीक है। तो मेनली ये एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये देखो ए आगे तरफ जा रहा था, बी ए के ऊपर एक फोर्स लगा, दैट इज पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ए आगे जा रहा था, बी को देखा, तो ए बी के ऊपर एक फ्रिक्शन लगा, कहां पे, कौन सा डायरेक्शन में, आगे, तो अलोंग द कॉन्टैक्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, क्या, एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये दोनों क्या हो गया, पेयर। तो क्या ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ये सर नो। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट कर रहा है इन पेयर में, ठीक है। तो एक एक्शन होगा और एक रिएक्शन होगा। तो ये सिंपल बस बेसिक कंसेप्ट था, और हम लोग देखेंगे उसका टाइप्स को, फ्रिक्शन को मेनली हम लोग डिवाइड करेंगे। वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड अदर इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली दो तरीका में डिवाइड किया जाता है। वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट हम लोग स्टैटिक क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा डिस्कशन कर देंगे, देन काइनेटिक का कंसेप्ट और फॉर्मूला को डिराइव कर देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक है कब लगती है, ये हमको जानना चाहिए। स्टैटिक जो है वो स्टैटिक कब लगती है, जब ये जो रिलेटिव मोशन जो है, यानी कि जो अभी हम पढ़े जो टेंडेंसी बोली,
व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, व्हाट, कब लगेगा, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, जब टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी रहेगा, जब रिलेटिव मोशन सच में हो नहीं रहा है, होने वाला है, ये टेंडेंसी मोशन सच में नहीं हो रहा है, होने वाला है, तो तब लगती है ये स्टैटिक। मतलब अभी भी बॉडी किस पे होगी ना, अभी भी बॉडी रेस्ट में होगी। सच में मोशन नहीं हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन है वो सच में मोशन नहीं हो रहा है, सच में मोशन नहीं हो रहा है, होने वाला है, तब लगती ही स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, तो रेस्ट है, कोई रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है, तब जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एनसीडी में दिया है, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, होने वाला है, तो अब ये लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मेरा पास एक बॉक्स है, यानी कि एक ब्लॉक है, मेरा एक सामने में कोई एक बॉक्स है या ब्लॉक है, मैं उसको जितना पुश करूंगा, ठीक है, यानी कि जमीन में लेकर जितना पुश करूंगा, उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहे हैं। जितना भी धक्का दिया, मैं ऐसे धक्का दिया, ऐसे धक्का दूं या जमीन में धक्का दूं, ठीक है, पे पुश करने कोशिश किया, अगर मैं थोड़ा से धक्का तो क्या हुआ, थोड़ा धक्का दूं तो क्या हुआ, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये सर नो, जस्ट थोड़ा धक्का दूं तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, नहीं बढ़ेगा। तो मेरी फोर्स कहां गई, मेरी फोर्स कहां गई, वो तो नहीं बढ़ेगी ना, तो मेरी फोर्स कहां गई, जो फ्रिक्शन का जो फोर्स ने मुझे ओपोज किया, जो बॉक्स है, बॉक्स का जो है वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मुझे ओपोज किया, तो आगे नहीं बढ़ा वो, यानी कि मेरा जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है, जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला, मींस मोशन नहीं हो रहा था, टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है, जो मोशन नहीं हो रहा था वो टेंडेंसी में थी, वो टेंडेंसी को रुकने वाला जो फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जो टेंडेंसी को जो रोकने वाला जो फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया, जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी को रोकने वाला जो फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन सच में रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन इज देयर मींस मोशन, रिलेटिव मोशन, सच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन इज देयर। तो यहां पे क्या ना, टेंडेंसी, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, होने वाला है, ठीक है, और यहां पे क्या ना, रिलेटिव मोशन इज देयर मींस सच में रिलेटिव मोशन वहां पे है, ठीक है, यानी कि जो बॉक्स और ब्लॉक का जो है, वो ब्लॉक्स का एग्जांपल लो, जो मैं बॉक्स और ब्लॉक लिया था मेरे जो सामने है, ठीक है, तो मैं धक्का दिया और धक्का देते तो वहां आवाज आते हैं, ये वहां पे देखो, ये जो है वहां पे हम लोग ये धक्का दे दिए तो कुछ आवाज आएगा, खिच 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 ऐसा आएगा, तो क्या है, जैसे हम लोग धक्का देंगे वो सरफेस को कांटेक्ट करके कुछ आवाज आएगा, आवाज आते हैं, तो वो क्या है एक्चुअली, ये क्या लग रहे हैं, क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, कहां पे ना, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कहां पे ना, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन रेस्ट पे भी लगता है, यानी कि मोशन पे भी लगता है, और एक फोर्स और एक फ्रिक्शन होता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आगे हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, मेनली स्टार्टिंग एंड काइनेटिक का डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है ना, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, होने वाला है, बट यहां पे रिलेटिव मोशन इज देयर,
सच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, यहां पे सच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, होने वाला है। ये बस डिफरेंट है, तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग चर्चा करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। जस्ट मैं उसका एग्जाम्पल नहीं तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। बस देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन जाएंगे, देन स्टैटिक फ्रिक्शन जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको डिनोट किया जाता है एफ के। क्या है? एफ के। तो क्या बोला मैं? सच में रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, मीन्स रिलेटिव मोशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कब लगेगा ना फर्स्ट पॉइंट, कब लगेगा ना रिलेटिव मोशन जब होगा, when there is relative motion। और ये जो फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट। वो डिपेंड नहीं करेगा उसका स्पीड में, यानी कि तेजी से फ्रिक्शन वाला फोर्स हुआ, फोर्स तेजी से स्पीड हुआ, यानी धीमे धीमे, क्या वो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करता है कि स्पीड पे बॉडी चल रही है। रिलेटिव मोशन का स्पीड ज्यादा है कि कम है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट। यानी कि जो रिलेटिव मोशन है उसका स्पीड कम है या ज्यादा है, वहां पे वो डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो बॉडी किस स्पीड में चल रही है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मींस उसका वैल्यू जो है एफ के का जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट हो गया, वो वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो एक डिपेंड किया फर्स्ट, क्या उसका जो पॉइंट रिलेटिव मोशन, देन वैल्यू क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। किस स्पीड से चल रहे हैं, वो रिलेटिव मोशन की स्पीड ज्यादा है या कम है, चाहे वो धीमे धीमे मोशन हो रहा है चाहे वो तेज तेज मोशन हो रहा है, वहां पे डिपेंड नहीं करेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है नंबर 3, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द नॉर्मल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा और आराम से समझ पाएंगे तुम लोग। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू के एन। ठीक है, म्यू के म्यू, ठीक है, म्यू के यू की तरफ से ऐसे करो, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका नाम क्या है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी कि वो काइनेटिक है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात था, यानी कि ये दो फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू, ये फॉर्मूला में हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन स्टैटिक फ्रिक्शन को जाएंगे। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, जस्ट बेसिक कंसेप्ट था, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आराम से इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, उसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि रॉबली में लिखा हूं तो एनसीईआरटी हिसाब से मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है, कैरी ऑन योर स्टडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।